Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, most of our important concepts of chapter 5 is over. That is related to Mendelian law of inheritance is over. The last video related to Mendelian law was the conclusion of dihybrid class. As you all know, Mendel, after getting the result in F2 generation by cross between the two different individuals, taking the two different phenotypic traits, two different traits, that is known as the dihybrid traits, find the amazing result. That is in next generation he find the 9:3:3:1 ratio among the round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. That was unexpected ratio, and he finally concluded that if more than two genes are inherited with each others, among them the dihybrid class for the round and for the wrinkled, for the yellow, for the green, there are several genes involved. If the more than two genes involved and interact with each others for their specific traits, then their distribution in gametes and progeny of subsequent generation remain independent. That was known as independent assortment or free recombination. That was over in previous video lecture. And according to Mendel, there has at least one dominant characters and one recessive characters among the each and every kinds of animals or plants and every kinds of organisms. But after some times, after the Mendel's conclusion, after the Mendel's discovery, as you all know, the exceptions is so common among the science. So after the full explanation and the theories of Mendel's if published, that there was exception begin among the Mendel's theory. And in this video lecture you have learned the whatever the exception that are available in the Mendel's theory, that actually known as the deviations of Mendel's theory or deviations of Mendel's law. According to Mendel's, at least one dominant recessive, at least one dominant characters is necessary for the every kinds of individuals that express probably in next generation if they are pure for their particular characters. But it was not happened later. And later, after the P, there are so many living organisms, animals and plants. The Mendel's experiment was performed and find the different results. In this video lecture, you will learn the important exception that is related to the Mendel's law. The key exceptions for Mendel's laws of inheritance was the incomplete dominance, and codominance. So it is all about the exception of Mendel's laws of dominance. It is all about the exception of Mendel's laws of dominance. According to Mendel's laws of dominance, every individual has at least one dominant factors that express dominantly in next generation. मेंडल ने क्या बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसमें कोई ना कोई एक जो है डोमिनेंट कैरेक्टर जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा पी के केस में हो सकता है, सारे ऑर्गेनिजम्स यानी सारे एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, और इसको सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसके एक्सेप्शन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के केस में हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब डोमिनेंट कैरेक्टर्स रिसेसिव के साथ कंप्लीटली एक्सप्रेस ना हो सके. क्या होगा, जब एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, और ऐसा पाया गया कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे जिसमें एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था. ऐसा हाइपोथेटिकली बिलीव कर लिया गया, जैसा मेंडल ने बोला था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है. और जब दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो उसको न ही डोमिनेंट का कोई कैरेक्टर्स मिला, न ही रिसेसिव का कोई कैरेक्टर्स मिला, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था. और को डोमिनेंस के केस में क्या मिला कि बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जिसमें दो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं. और जब दो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आगे जनरेशन में क्या होगा, कौन सा डोमिनेंट का एक्सप्रेस होगा, कौन सा किसका नहीं होगा. तो पाया गया कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर कभी कभी एक ही इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो जाते हैं. तो ये को डोमिनेंस का केस है. इसका भी मैं आपको एग्जांपल और वीडियो आप अवेलेबल कर देंगे. ठीक है, अभी आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हेडिंग आप डालेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, को डोमिनेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हालांकि नोट आप कर लीजिए. ये दो एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉज ऑफ
डोमिनेंस, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय कार्ल लोरेंज इन 1903। मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, उसको सबसे पहले कार्ल लोरेंज ने इनजस्टिफाई किया था। इनजस्टिफाई मींस क्या होता है? इनजस्टिफिकेशन मींस क्या होता है? गलत ठहरा दिया। कैसे? ध्यान से सुने। इसके लिए कार्ल लोरेंज ने एक प्लांट सेलेक्ट किया, उस प्लांट का नाम था स्नैपड्रैगन। एक्चुअल में ये कार्ल लोरेंज ने एक ही तरह के फ्लावर कलर दो तरह के प्लांट्स में देखा। एक प्लांट था स्नैपड्रैगन और दूसरा था 4 o'clock प्लांट्स, जिसको मिराबिलिस जलापा बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस में स्नैपड्रैगन का ही सबसे कंक्लूजन है और उसका 4 o'clock प्लांट्स का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कार्ल लोरेंज ने एक साथ दो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लिसन केयरफुली। प्लांट्स जो सेलेक्ट किया था, प्लांट्स सिलेक्शन, जो प्लांट सिलेक्शन किया था किसने? कार्ल लोरेंज ने। वो दो तरह का प्लांट सेलेक्ट किया। पहला था स्नैपड्रैगन और ये तुम्हारे सिलेबस में इसी पे आपको फोकस करना है। स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीरिनम मेजस। आप इसको नोट कर लीजिए, एंटीरिनम मेजस, ठीक है। स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, 4 o'clock, ये प्लांट का नाम है। 4 o'clock ये प्लांट का नाम है, ठीक है। 4 o'clock ये प्लांट का नाम है, इस पे आपको फोकस रहना है, बहुत अजीबोगरीब नाम है। और इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा जो है ये 4 o'clock प्लांट का नाम था और एंटीरिनम मेजस स्नैपड्रैगन का नाम है। क्लियर है? इतनी बातें सबको। अब इसमें कौन सी कॉमन चीजें देखी? कार्ल लोरेंज ने एंटीरिनम मेजस और मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर को आइडेंटिफाई किया और पता लगाया कि जितने भी फ्लावर कलर थे उसमें दो ही तरह की वैरायटी देखने को मिली, चाहे वो मिराबिलिस जलापा का प्लांट हो चाहे वो स्नैपड्रैगन का प्लांट हो, ठीक है। सिर्फ उसको दो ही वैरायटी फ्लावर की मिली, एक रेड कलर था और एक व्हाइट कलर था, ठीक है। दो कलर मिला, रेड मिला और व्हाइट मिला, ठीक है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। इट मीन्स कोई ऐसा प्लांट नहीं मिला जिसमें एक ही प्लांट पर रेड और व्हाइट। प्लांट्स में या तो रेड फ्लावर खिले थे या फिर व्हाइट फ्लावर खिला था। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। चाहे वो मिराबिलिस जलापा है चाहे वो एंटीरिनम मेजस है, प्लांट्स को बढ़िया से ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि प्लांट्स में दो ही तरह के, दो ही वैरायटी के प्लांट्स दिख रहे हैं, एक रेड और एक व्हाइट। वो रेड फ्लावर्स को, रेड फ्लावर वाले प्लांट्स को पिक किए और उसी का पॉलन ग्रेन उसी पे छिड़क दिया और लंबे जनरेशन तक ये काम करते रहे और उनको एक ही तरह का प्लांट मिलता रहा, सिर्फ रेड 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 रेड, ठीक है। जब प्योर रेड को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो आइसोलेट कर दिया, यानी कि मेन पॉपुलेशन से आइसोलेट कर दिया, कहीं और बो दिया। ऐसे ही व्हाइट का पॉलन ग्रेन उस पे स्टिग्मा पे छिड़क दिया। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस कराने से इम्प्योरिटी दूर हो जाती है। क्लियर है ना? इससे पहले आपको बताया गया था जैसे कैपिटल आर ये इस टाइप का अगर प्लांट हो तो रेड हो सकता है, ये प्रिडिक्शन था कार्ल लोरेंज का। तो इसको मेंडल ने भी किया था। प्योर प्लांट बनाने के लिए, इसको कैपिटल आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी का सेल्फ क्रॉस इसी पे कराना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इसको आइडेंटिफाई करके फिर उसी का उसी, यानी कि हम जब इसी पे सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो अगले जनरेशन में सभी पौधे हमको क्या मिलेंगे? रेड नहीं मिलेंगे। ये 3 रेड मिलेगा और अगला जो है व्हाइट मिल जाएगा। जो ही स्मॉल आर आएगा, आप सेल्फ क्रॉस करवाना अच्छे से जानते हैं, कैपिटल आर
स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे आप कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी किए थे मेंडल्स वाले केस में, वैसे ही इसके केस में भी हम कर सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर को हम और सेपरेट आउट करना। देखो रिसेसिव कैरेक्टर्स अपने आप के लिए प्योर होता है, उसमें डाउट नहीं होता, हमेशा स्मॉल आर ही, हमेशा स्मॉल लेटर का पेयर ही हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर्स होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंट में डाउट होता है क्योंकि एक ही जीन इनफ होता है, दूसरा की स्मॉल भी हो सकता है, तो उसको आप प्योर जीन बनाने के लिए एग्जाम में आता है। प्योर लाइन ब्रीडिंग प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस, ये एग्जाम में आता है, लिख लीजिए आप। अभी जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसको कहीं लिख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस करवाने से, फॉर द कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोजाइगस ब्रीड्स। तो होमोजाइगस ब्रीड से कॉन्टिन्यूअस सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। मान लो कि शक है कि रेड फ्लावर में ये इसका जीनोटिपिक ट्रेट्स जो है कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, तो होगा क्या, तो उसी पे पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे छिड़क देंगे। अगले जनरेशन में व्हाइट मिला, इसका मतलब प्योर नहीं था, फिर उसमें से रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका उसी पे छिड़केंगे, फिर कुछ व्हाइट मिल गया, फिर हमको पता चला कि वो प्योर नहीं था। ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक कि चारों प्रोजेनी रेड न मिल जाए। अगर चारों रेड मिलने लगे इसका मतलब पेरेंट्स प्योर था और वो सारे के सारे भी अपने लिए प्योर है, यानी कि सब जो है कैपिटल आर के केस में है। क्लियर है तेरी बातें। अब कार्ल कोरेंस को एक प्योर जो है डोमिनेंट ट्रेट्स और एक प्योर रिसेसिव ट्रेट्स अपने प्रेडिक्शन के बेस पे उनको लगा कि हो सकता है कि रेड डोमिनेंट हो व्हाइट रिसेसिव, रेड डोमिनेंट हो और व्हाइट रिसेसिव, ऐसा लगा उनको। तो वो प्योर होमोजाइगस ब्रीड्स प्रिपेयर कर लिए रेड फ्लावर के लिए और एक व्हाइट फ्लावर के लिए प्रिपेयर कर लिए और क्रॉस परफॉर्म किया। तो आप ये बातें लिख लीजिए कॉपी में, या नोट्स मिल जाएगा तो आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब आते हैं क्या किया कार्ल कोरेंस ने, कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। लिसन, ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिख दे रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कार्ल कोरेंस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कार्ल कोरेंस एक्सपेरिमेंट किस पे पढ़ रहे हैं, ये भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये किस पे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं एंटीरिनम मेजस पे, एंटीरिनम मेजस, एंटीरिनम मेजस पे पढ़ रहे हैं। इतनी बातें क्लियर, एंटीरिनम मेजस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, एग्जाम में आता है कभी, स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन। तो कार्ल कोरेंस ने किया क्या, ध्यान से सुनेंगे। कार्ल कोरेंस ने एक T1 जनरेशन लिया, T1 जनरेशन, और उसमें रेड फ्लावर वाले प्लांट्स को लिया। सपोज दैट ये रेड फ्लावर था, ठीक है, और एक जो है व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को लिया, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को लिया। सपोज दैट ये व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट, क्लियर है ना। अब दोनों के लिए ये क्या था, फिनोटाइप था। ये क्या था, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप था, ठीक है। जो दिखता है विजिबल कैरेक्टर्स वही फिनोटाइप होता है। फिर दोनों के लिए एक्सपेक्टेड जीनोटाइप प्रिडिक्ट किया। भाई ये मान लिया कि रेड हो सकता है डोमिनेंट, चटक लाल है, रेड है, डोमिनेंट होगा। तो इसके लिए जीनोटाइप भी प्रिपेयर कर लिया। इसके लिए क्या बना लिया, जीनोटाइप भी बना लिया। और इसके लिए बताया कि अगर प्योर है तो ये हमेशा कैपिटल आर के केस में होगा, और ये प्योर है तो स्मॉल आर के केस में होगा। क्लियर है ना। इसके बाद कार्ल कोरेंस ने दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे गैमेट्स बनेगा, यानी कि क्या लिखेंगे, P1 गैमेट्स क्या होगा, कैपिटल आर, और इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर, यानी एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब क्रॉस करवाया, यहां पे मैं क्रॉस करवा दे रहा हूं, P1 क्रॉस एंड F1 रिजल्ट। P1 क्रॉस करवाया और F1 रिजल्ट उनको मिला, ठीक है। P1 क्रॉस करवाएगा तो F1 रिजल्ट मिलेगा, F1 क्रॉस करवाएंगे तो F2 रिजल्ट मिलेगा। क्रॉस कैसे करवाया, कैपिटल आर, यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो क्या मिला, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
फिर इसके बीच में क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब क्या किया कि व्हाइट फ्लावर का पॉलन ग्रेन किस पे छिड़क दिया, रेड कलर के स्टिग्मा पे, और रेड कलर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे छिड़क दिया। ठीक है, आप रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं बदलता है अगर हम जेंडर चेंज कर दें। डोमिनेंट और रिसेसिव का जेंडर, डोमिनेंट और रिसेसिव का ट्रेट्स कभी नहीं बदलता अगर हम जेंडर चेंज कर दें। तो कार्ल लोरेंज को तो एक्सपेक्टेड यही था कि आगे वाले जनरेशन में मेंडल के रूल को फॉलो करेंगे। सब जो है मेंडल में क्या हो गए थे, प्योर टाल का प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाने पे सब प्योर टाल हो गए, सब टाल हो गए थे, प्योर तो बोल नहीं सकते, सब टाल हो गए थे। उनको एक्सपेक्टेड जो प्रिडिक्शन था वो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हुआ क्या, सारे जितने भी F1 इंडिविजुअल थे सब पिंक हो गए, यानी कि ना मेल पेरेंट से उनका मिला मैच, नहीं फीमेल पेरेंट से मिला, सब के सब क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ऑल पिंक, ऑल पिंक, सब के सब क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए फ्लावर। सारे फ्लावर क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए, पिंक कलर के। सारे फ्लावर क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए। ये छोटा बड़ा मत बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हाइट वगैरह छोटी हो गई, नहीं, बट जगह नहीं था जल्दी में बना दिया। सब फ्लावर क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए। और इसके बाद कार्ल लोरेंज को आइडिया मिला कि इट मे पॉसिबल दैट द डोमिनेंट कैरेक्टर्स बिकम इनकम्प्लीट, dominant characters incompletely expressed with the recessive characters, and according to that law the Carl Lorenz predicted that the genetic situation when the dominant characters incompletely express with the recessive characters in next generation remain failed to express in next generation, that is known as the इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लिख लीजिए कॉपी में, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ F1 कार्ल लोरेंज predict that the genetic situation when rats incompletely dominate to another one, and according to result of F1 Carl Lorenz predict the genetic situation when rats remain incompletely dominant to another one called as incomplete dominance। क्लियर है ना? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन होगा, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद कार्ल लोरेंज ने ये चेक किया कि चलो देखते हैं F1 में जितने भी रिजल्ट आए हैं उनका उसी पे सेल्फ क्रॉस करवा करके कोई एक प्रोजेनी पिक कर ले रहे हैं और उसी पे सेल्फ क्रॉस करवा करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आप चीजें नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आपको फिर से यहाँ पे F1 क्रॉस F2 रिजल्ट के बारे में बता दे रहा हूं। ठीक है, F1 क्रॉस F2 रिजल्ट। अब F1 क्रॉस करवाया कैसे, क्या ले लिया, F1 में पिंक क्या फ्लावर और फ्लावर ले लिया। ठीक है, और इनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसका भी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्रॉस करवाया कैसे,
ये मल्टीप्लाई करेगा तो कैपिटल आर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल आर आएगा। फिर कार्ल कोरेंस को बड़ा गजब का रिजल्ट मिला। रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट होगा कि जब एक कैपिटल आर होगा दूसरा स्मॉल आर होगा तो रिजल्ट बदल जाएगा, पिंक हो जाएगा। जब दोनों कैपिटल होंगे कैपिटल आर तो रेड होगा, दोनों स्मॉल आर होंगे तो व्हाइट होगा। सिचुएशन ऐसे ही मिला इनको F2 में। यानी कि ये क्या था, ये था रेड, ये दोनों क्या थे, पिंक थे, और ये क्या था, व्हाइट था। यानी कि रिजल्ट क्या मिला था कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या मिला, 1:2:1 मिला। यही डिफरेंस है मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल के F2 रिजल्ट में यानी कि डोमिनेंस में और कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यही मेन डिफरेंट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल द रिजल्ट ऑफ F2 when during the monohybrid class the result of F2 will be for the genotypic traits the ratio will be 1:2:1 and for the phenotypic ratio the 3:1 according to Mendel's laws of dominance. But according to the laws of incomplete dominance the genotypic and phenotypic ratio will be similar. अब देखो यहाँ पे genotypic ratio क्या है, genotypic रेशियो अगर निकालेंगे तो ये हो गया जीनोटाइप, यानी कि इसमें कैपिटल आर कितनी बार आया है, 1 बार। कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और स्मॉल आर कितनी बार आया है, 1 बार। यानी कि जो जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 1:2:1। क्लियर है ना। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बैक करके। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो चेक कर लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में क्या, फिनोटाइप जो आप देख सकते हैं, रेड आया है, पिंक आया है और व्हाइट आया है, यही 3 आया है। रेड कितने बार आया है, 1 बार आया है, ओनली वंस। पिंक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, 2 टाइम्स। और व्हाइट कितनी बार, 1 टाइम्स। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 1:2:1। इट मींस in the incomplete dominance during the F1 result of incomplete dominance the genotypic ratio and phenotypic ratio are similar. That is the basic difference between the laws of dominance and incomplete dominance. I think your concept regarding the laws of dominance and incomplete dominance is clear. कई बार ये एग्जाम में पूछता है, क्लियर है ना। तो आप इससे रिलेटेड बेफिक्र रहिए, इससे रिलेटेड आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कितना लिखना है, क्या लिखना है। एक्सपेरिमेंट आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद भी बहुत सारे रिजल्ट और देखने को मिले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का रिजल्ट बहुत सारा और भी देखने को मिला जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो स्टार्च ग्रेन का रिजल्ट। ठीक है, स्टार्च ग्रेन पी में स्टार्च होता है, सबको पता है। और वो स्टार्च ग्रेन के लिए जीनोटाइप क्या बनाया गया, यानी कि तुम कॉपी में क्या लिखोगे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंटीरिज्म मेजर्स। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में बी करके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्टार्च ग्रेन्स ऑफ पी। पी के स्टार्च ग्रेन में 2 तरह के ग्रेन मिले, स्टार्च 2 तरह के मिले। क्या मिला, एक बिग साइज का मिला, एक बिग साइज का, और एक स्मॉल साइज का मिला, स्मॉल साइज का मिला। ठीक है, बिग साइज जो स्टार्च ग्रेन था उसको पहले से माना गया वो डोमिनेंट होगा, उसके लिए जीनोटाइप तुम लोग बना लेना, कैपिटल बी, और इसके लिए स्मॉल बी। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इसी को लेकर के यानी स्टार्च ग्रेन की साइज को लेकर के क्रॉस करवाना है। इसके लिए आप क्रॉस करवाएंगे, F1 में कैपिटल बी स्मॉल बी सब मिलेंगे, यानी कि सब जो हो जाएंगे मीडियम साइज ग्रेन। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी अगर F1 में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मीडियम साइज ग्रेन। ठीक है, फिर उसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी मल्टीप्लाई कैपिटल बी स्मॉल बी। तो नेक्स्ट जनरेशन में यानी F2 में आपको क्या मिलेगा,
मीडियम साइज ग्रेन यानी कि बिग साइज ग्रेन, मीडियम साइज ग्रेन और स्मॉल ग्रेन में आपको जो रेशियो मिलेगा वो 1:2:1 का मिलेगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी का जो रेशियो मिलेगा वो भी 1:2:1 का मिलेगा। आई होप इसको कर ले जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, इसके बाद एनिमल्स पे किया गया एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जो है एनिमल्स पे भी किया गया, वो कॉपी में लिख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा ना कि जानकारी के लिए आपको होनी चाहिए। एक पोल्ट्री फार्म में एक एंडालुसियन बर्ड्स था, एक एंडालुसियन जो है स्पीसीज के मुर्गे होते हैं, उसमें दो तरह की स्पीसीज आती है, दो कलर आता है, एक ब्लैक होता है और एक व्हाइट होता है, ठीक है। लेटर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंडालुसियन बर्ड्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंडालुसियन बर्ड्स, ठीक है। एंडालुसियन बर्ड्स मतलब ये फाउल था, ठीक है, मुर्गे की प्रजाति थी। उसमें क्या मिला, एक ब्लैक होता था जिसके लिए कैपिटल बी असाइन किया गया, और एक व्हाइट होता है जो स्मॉल बी असाइन किया गया। ब्लैक बर्ड्स, ब्लैक फाउल का व्हाइट फाउल के साथ क्रॉस करवाने पे अगला रिजल्ट सारे जो मुर्गे के बच्चे थे वो ब्लू कलर के हो गए थे, ठीक है। जो रिजल्ट आया था वो कैपिटल बी स्मॉल बी आया, लेकिन ये आते ही सब के सब क्या हो गए, ब्लू हो गए। यानी कि F1 में सारे रिजल्ट क्या हो गए, ब्लू हो गए। इसको भी आप अच्छे से लिखेंगे। F2 में सेल्फ क्रॉस तो करवा नहीं सकते, लेकिन एक ब्लू जो है बेबी को लिया, फिर दूसरे ब्लू को लिया, दोनों के बड़े होने का इंतजार किया गया, फिर जो है फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट मिला वो सभी मुर्गों में वही रिजल्ट था जो अनएक्सपेक्टेड था, जो कार्ल कोरेंस का रिजल्ट था। यानी कि ब्लू का, ठीक है, ब्लू का और व्हाइट का जो रेशियो था 1:2:1 था, और जो जेनेटिक रेशियो था इसमें कैपिटल बी में, कैपिटल बी स्मॉल बी में वो 1:2:1 था, ठीक है। I hope your concept regarding incomplete dominance is clear. If you have any problem regarding the incomplete dominance, then you should make the questions in live classes or in the comment box. Thank you.